At once, instantly, except grammar, spelling. Ultrafiltration system at St Mary's uses hollow membrane fibres to remove suspended solids, bacteria and viruses from the tertiary treated wastewater. Each membrane fibre has millions of microscopic pores. Each pore is about 0.02 of a micron in diameter. A human hair is about 75 microns in diameter. These membrane fibres sit in cells filled with tertiary treated wastewater, also called feed water. Pumps draw the filtered water or filtrate through the microscopic pores into the fibres themselves. The pores act as a physical barrier. Only filtrate can pass through the pores. Unwanted materials, suspended solids, bacteria, viruses and pathogens like Cryptosporidium and Giardia are left. Yes, all of you, can you see this? This is a filter, ultra filter. ठीक है, इसमें जो holes है, they are very small, means very smaller than our hairs. तो वो जो particles है, means means colloids कैसे होते हैं? Colloids the membranes are arranged horizontally into modules, larger in size than that of solids, impurity. bacteria. ठीक है, तो अभी let us consider ये जो red वाला जो है ना, ये colloids है, और ये जो purple वाला है ना, वो impurity है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो filter है, means it is a membrane, तो उसमें से सिर्फ क्या पास होगा? Impurity पास होगा ना? Yes, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And colloidal particles जो है वो क्या हो जाएंगे? रह जाएंगे. Means now suppose ma'am, is it going from outside to inside? Yes, yes. Means इसके अंदर जाएंगे वो, and then it will be removed out. You see in further video you will get to know. Now suppose you have one beaker. हम लोग के पास में एक beaker है, और हम लोग ने ये बीकर को क्या किया है? डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे लगाया है. आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. अभी यहाँ पे मैं सोल्यूशन रख रही हूँ कलॉइड्स का. तो यूजुअली कलॉइड्स का साइज कैसा होता है? लार्जर होता है, और इम्प्योरिटी जो रहेगा वो कैसा रहेगा? स्मॉलर साइज का होगा. ठीक है, और इस तरफ जो है वो सोल्यूशन है. इस तरफ जो है वो नॉर्मल सोल्यूशन है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसमें से ये मेम्ब्रेन के थ्रू कलॉइड्स तो नहीं पास हो सकते हैं, तो सिर्फ कौन पास होगा? इम्प्योरिटीज पास होगा. यस, ऑल ऑफ यू, ओनली इम्प्योरिटीज विल गेट पास. सो इम्प्योरिटीज यहाँ से, नॉट इवन द सोल्यूशन ना. हाँ, solution means you have a solvent here. ठीक है, तो अभी like ma'am H2O. हाँ, H2O. yes. So now impurities will pass through that pores towards this side, means यहाँ से यहाँ पे पास होंगे impurities. ठीक है, so impurities इस तरफ आ गए, means यहाँ पे सिर्फ colloids बचेंगे. Yes. So now colloids are purified. Yes, but usually ये process जो होता है ना वो slow होता है. So to make it fast, what we can do, we can apply pressure on this side. तो pressure जब भी हम लोग apply करते हैं तो impurities को push किया जाता है उस तरफ, तो वो process fast हो जाता है. Clear all of you? मैम ये reverse आपने नहीं, osmosis कैसे समझ you? रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होगा बताओ मुझे. यहाँ पे ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही जा रहा है. हो रहा है यहाँ पे ऑस्मोसिस हो ही नहीं रहा है. मैम पर उसमें भी हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन ही जा रहा था. अच्छा, वैसा बोल रहे हो तुम? हाँ हाँ वैसे. बट वो सॉल्वेंट मूव होता है ना ऑस्मोसिस में, यहाँ पे तो सिर्फ इम्प्योरिटी मूव हो रही है. ओके ओके. कि बाकी कुछ जा ही नहीं पाएगा उस तरफ. ओके ओके. See, I am explaining it once again. Just pay attention. You have one beaker. Beaker is divided into 2 compartments through a membrane. This is ultrafiltration membrane.
ठीक है, इसके जो पोर्स है वो ऐसे, ये जो मेम्ब्रेन है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, वो मेम्ब्रेन है, वही यहाँ पे लगाया हुआ है। नाउ ऑन वन साइड वी हैव कलॉइड्स, अपने पास में यहाँ पे क्या है, कलॉइड्स है। कलॉइड्स का साइज कैसे होता है, लार्ज साइज होता है, और इम्प्योरिटीज जो होती है वो स्मॉलर साइज की होती है, इट इज ऑफ स्मॉल साइज। तो ओनली impurities कैन पास थ्रू दिस पोर्स। ये जो पोर्स है अभी देखा ना, इसमें से सिर्फ इम्प्योरिटीज पास हो रही थी, तो वैसे ही ये जो मेम्ब्रेन है ये भी वो सेम मेम्ब्रेन ही है, इसमें से सिर्फ इम्प्योरिटी पास होंगी। और इस तरफ हम लोग ने क्या रखा है, सॉल्वेंट रखा है। तो क्या होगा यहाँ पे, यस ऑल ऑफ यू, इम्प्योरिटीज जो है वो ये मेम्ब्रेन से इस तरफ पास हो जाएंगी। यस, Yeah. Yes. so after some time what Yes, will get to what अपने को देखने क्या मिलेगा, Colloids है. मेम्ब्रेन है ये, दिस इज अ मेम्ब्रेन। देन इसके अंदर सिर्फ क्या रहेगा, Colloids. कलॉइड, और इम्प्योरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इस तरफ आ Solvent जाएगी, में. सेपरेट। सेपरेट हो जाएगी। क्लियर ऑल ऑफ यू। सो इससे मैम क्या होगा, एक्सटर्नल, इससे क्या होगा, एक मिनट बता रही हूँ मैं, उससे क्या या होगा कि सोल्यूशन जो है वो प्योर हो जाएगा। ठीक है, बट ये अगर खुद से नेचुरली हम लोग में रुकते हैं कि इम्प्योरिटी पास होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से एंड प्रोसेस कलॉइड्स प्योर होंगे, सो इट इज अ स्लो प्रोसेस। सो टू मेक इट फास्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई प्रेशर ऑन दिस साइड। so when we apply pressure on this side, तो वो impurity means when solution को वो push करता है, तो push करता है तो क्या होगा, जो impurities है वही सिर्फ पास होंगी। ठीक है, ऑफकोर्स कलॉइड पार्टिकल्स पे भी प्रेशर आएगा, बट कलॉइड पार्टिकल्स लार्ज साइज में, तो वो ऐसे उसके ऊपर स्टक हो जाएंगे, जैसे ये स्टक हुए है ना पार्टिकल, वो उसके ऊपर स्टक हो जाएंगे, वो जा नहीं पाएंगे उस तरफ, बट इम्प्योरिटीज विल गो थ्रू दैट पोर्स ऑन अनदर साइड। क्लियर, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, उससे फास्ट हो जाएगा। ओके। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। Yes. So now you just see this video. Further क्या हो रहा है? Viruses and pathogens like Cryptosporidium and See how Giardia are left impurities are behind. going through that pore. The membranes are arranged horizontally into modules. Each module contains 30,000 membrane fibers held by resin at each end. The membrane fibers connect to a single common module header. This is where the filtrate is collected. Two plastic shrouds encase the sides of the module. The shrouds protect the fibers. The filtrate is collected. Two plastic shrouds end. The membrane fibers connect to a single common module header. Ma'am, your voice is not coming. हाँ, इम्प्योरिटीज जो है वो ये फिल्टर में जा रही है ना, दिस इज अ फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दिस इज अल्ट्रा फिल्टर। तो ये इम्प्योरिटीज जो है वो इसमें पास हो रही है, एंड देन ये आउटलेट से उसको निकाला जा रहा है बाहर। क्लियर ऑल ऑफ यू। दिस इज द इनलेट, This is where इनलेट the है यहाँ filtrate से, is. यहाँ से सोल्यूशन मूव हो रहा है, देन इट इज पासिंग थ्रू दिस फिल्टर, तो फिल्टर पे पास होगा तो इम्प्योरिटीज इसके अंदर से पास हो जाएंगे, एंड देन यहाँ से उसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैम अभी तुम इसको लोग क्या को अटैच किया? ये वाटर का फिल्ट्रेशन यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। मेरे को सिर्फ तुम लोग को बताना था कि मीन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है, उसके अंदर कैसे छोटे पोर्स होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया ये डायग्राम में से, है ना, इतना समझ गया सबको। फिर ये मैंने जो यहाँ Yes. पे एक्सप्लेन किया, दैट इज अंडरस्टूड टू ऑल। Yes. तो बस इतना ही है, तुम लोग को इतना ही समझना है। अभी वो ये जो प्रोसेस यहाँ पे जो वीडियो में बता रहे हैं ना,
वो वाटर का फिल्ट्रेशन है, वो अपने को नहीं देखना है, वो अपने को नहीं है सिलेबस में. Clear all of you? So whatever you have understood in this, whatever I have explained you have to write it down now. You will draw this diagram. Do it fast. Ma'am, this which you have drawn, that one we have to draw. Yes, yes. मैम इसमें भी मेम्ब्रेन फाइबर लिखना है या फिर वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन लिखना है? अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन है. पार्चमेंट कहाँ पे यूज होता है? डायलिसिस में यूज होता है. हाँ, मतलब डायलिसिस इसमें कौन सा मेम्ब्रेन? यहाँ पे अल्ट्रा Ultra filter. फिल्टर Okay. मेम्ब्रेन. Okay. अल्ट्रा फिल्टर मीन्स एकदम इससे भी छोटे पोर्स जो होते हैं ना, वो माइक्रो फिल्ट्रेशन में यूज होते हैं. Okay. उससे भी छोटे पोर्स नैनो फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं. तो वो बेस्ड ऑन दी पोर्स ऑफ फिल्टर ये फिल्ट्रेशन को फर्दर डिवाइड किया है. अपने घर तो पे मैम जो होता है वो मैम ये जो simple filtration. मेम्ब्रेन है, मैम ये जो मेम्ब्रेन है ये भी सेमी परमिएबल है? हाँ, सेमी परमिएबल ही है ना. सेमी परमिएबल यानी क्या? तुम उसमें से कुछ ये हो रहा है ना, वो पास जो हो रहा है ना. अलाउ हाँ, करेगा it वही is जा सकता है allowing ना? something to pass ना, so it is semi permeable membrane. ओके मैम. So, ma'am, we have to apply the external pressure na, for this. हाँ, to make it fast you can apply pressure. Okay. Without pressure, it can exist, right? Just that Yes, if we have to without get it done हाँ, soon, so we yes, provide pressure, no? Yeah. yes. To make it fast we provide pressure. मैम जब हम लोग को सोल्यूशन एकदम क्लियर चाहिए ही, तो मतलब हम लोग को इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कंसीडर ये करना चाहिए ना? सबसे पहला सूरज ये सोल्यूशन नहीं है, ये कलॉइडल डिस्पर्शन है. सोल्यूशन इज डिफरेंट एंड कलॉइडल डिस्पर्शन इज डिफरेंट. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है. हाँ मैम. It's done now, all of you. No, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, can you please repeat it once? Actually, network issues were there, so I got disconnected. No, Fatima, you just see now recording and you see this video because it's I have to finish off you. I have to complete this chapter today. मैम पूरा स्टार्टिंग से नहीं बोल रही, सिर्फ एक बार बस रिपीट कर दो थोड़ा सा. ये एक ही किया है हम लोग ने. You have to join on time, Fatima. मैम मैं मीटिंग में ही हूँ अभी, मतलब 5-10 मिनट पहले ही वो है ना मैसेजेस आ रहे थे ना, तो इसलिए पूरा हैंग हो गया था फोन. These are the ultra filter. This is the ultra filter. And when colloidal solution is passed through a ultra filter, so these pores are very small, so small कि इसमें से only impurities will pass. Colloidal colloids are comparatively larger in size, so it won't get passed. So you can see here we have one beaker which is divided into two compartments through ultra filter membrane, and here is the solution of colloids. Larger size particles are colloids and smaller size particles are impurities. So you can see here impurities can get passed through this filter.
So when impurities are getting passed through this filter, impurity will get accommodated in this compartment. So this colloid will become pure. I hope all of you it's done. Okay, ma'am. Thank you. Yes, sir. Yes, ma'am. So now let us start with colloidal properties. Properties of colloids. So all of you, we have studied polygalactic properties. Yes, all of you, we have studied colligative properties. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Colligative properties हम लोग ने किसके लिए स्टडी किया है? ऑस्मोटिक प्रेशर्स के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ट्रू No, सॉल्यूशन ma'am. नहीं मैम, वो सॉल्यूशंस के लिए। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन के लिए। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कलॉइड्स के लिए भी होती है, ठीक है? तो व्हाट आर दी let us discuss some properties of colloids. तो फर्स्ट हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ colloids. So now colloids, सबसे पहले हम लोग ने क्या स्टडी किया? कलॉइडल सिस्टम, जो कलॉइडल डिस्पर्शन होता है वो कैसा होता है? होमोजीनियस होता है कि हेटेरोजीनियस होता है? Hetero. हेटेरो है ना? इट इज अ हेटेरो, Heterogeneous. पार्शियली सॉल्यूबल है। Substances are partially soluble, so it is a heterogeneous mixture. Then it consists of disperse phase and disperse medium. Yes, all of you, correct now? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Disperse phase particles are larger in size. Then disperse medium particles. Disperse medium particles passes through ordinary filter paper and slowly through parchment membrane. Particles are undetected through ordinary microscope. Size of particles यानी कौन से? colloidal particles. Size of colloidal particles changes, color also changes. Different size has different property. So for example, gold sol color changes from red to yellow. Red to yellow. गोल्ड सॉल जो होता है उसका जो कलर होता है वो रेड टू येलो नहीं, रेड टू ब्लू चेंज होता है। रेड टू ब्लू।
Okay. Miss, but how does this last property happen? Like, how does size change the color? Your colloidal particles have size from 10 raised to 1 nanometer to 10 raised to 3 nanometer ना, Yeah, means yeah. 1 to 1000, so there is variable range ना, तो वो हम्म, रेंज में कोई भी साइज का पार्टिकल हो सकता है उसका. हाँ. अगर डिफरेंट साइज है तो कलर भी डिफरेंट होगा. जैसे हम लोग Okay. जो गोल्ड देखते हैं वो येलो कलर का है, बराबर ना, तो वो हाँ, जो हाँ. गोल्ड होता है वो ट्रू सोल्यूशन वाला है. मींस द ज्वेलरी विच वी वेयर इज एलॉय, एंड एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. मींस तुम्हारा गोल्ड एंड कॉपर होता है ज्वेलरी के अंदर, तो वो ऐसे मिक्स होता है एक दूसरे के अंदर कि अपने को पता भी नहीं चलता है कि गोल्ड का पार्टिकल कौन सा है, कॉपर का पार्टिकल कौन सा है, बराबर ना. तो इट्स अ Yes, होमोजेनस. ma'am. वहां पे जो साइज है गोल्ड का वो स्मॉल है, और जब भी हम लोग गोल्ड सॉल की बात करते हैं वहां पे साइज विल बी डिफरेंट. It will be So between color 1 will also be nanometer to 10 different. raised to 3 Yeah. nanometer, and in gold jewelry size is less हाँ. than 1 nanometer. Okay, Miss, got it. मैम लास्ट मैम पॉइंट बोलो ना. Size, read करूँ मैं point. या Size of मैम. colloidal particle changes, color also changes. For example, gold sol color changes from red to blue. ओके मैम. मैम फोर्थ पॉइंट में आपने लिखा है कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन से भी निकल सकता है, तो मैम इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस. स्लोली में निकल सकता है, बट जो तुम्हारा डायलिसिस प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है. मीन्स वाटर के फ्लो के साथ इम्प्योरिटीज निकल जाती है, तो कलॉइडल पार्टिकल्स को निकलने का चांस ही नहीं मिलता है. वो फ्लो होता है ना ऐसा, वाटर फ्लो, यस तो मैम. फ्लो के साथ इम्प्योरिटी वॉश ऑफ हो जाती है. ओके, मतलब ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो मैम कोलोइडल पार्टिकल्स हाँ, भी निकल जाएंगे. इट कैन, सम पार्टिकल्स कैन कम. ओके. Yes, all of you write it fast. मैम ये क्या लिखा है, रेड टू ब्लू? रेड टू ब्लू, बस उतना ही है. Ma'am, ओके मैम. हाँ, In ultrafiltration, whether it is slow or a fast process, colloids will not come, no? that is not parchment membrane na. In ultrafiltration it is ultrafilter membrane. Yeah. Parchment membrane is different and ultrafiltration is different. Ultrafilter membrane is different. पार्चमेंट में पोर्स ज्यादा बड़े होते हैं देन अल्ट्राफिल्टर. Yes. सुनो, yes, all of you, it's done. Yes, नो ma'am. मैम. Just a second, ma'am. Take screenshot now. इसका और एक मुझे मैम वो प्रॉपर्टी तुम लोग को ब्लू बताना के है. बाद क्या लिखे हो बस वो बता दो ना. रेड टू और ब्लू फिर उसके बाद. कुछ भी नहीं है रेड टू ब्लू, बस फुल स्टॉप है.
Yes, all of you. Sixth property. Now, if you compare true solution and colloidal solution, तो colloidal solution में क्या होता है? Particles aggregate together. Yes, all of you. Particles aggregate together. We have Yes, done ma'am. now macromolecular colloid, Yes, ma'am. micromolecular colloid. So particles क्या करते हैं? Aggregate करते हैं together. Yes. So उससे क्या होगा? Aggregate करेंगे तो क्या होगा? Number of particles Molecules in a solution will decrease. हाँ. Yes. तो अगर number of particles decrease होंगे solution में, तो colligative property क्या होगा? Decrease होगा ना? I will decrease. Yeah. Association में भी यही होता था ना? Particles associate होते थे, I decrease होता है and colligative property decrease होता है. बराबर? Same here also. In colloids, particle number of particle aggregate together, तो particles जो है वो comparatively less है, तो I decrease होता है and colligative properties भी कम होता है. Is this clear all of you? Yes, ma'am. मैम ये सिर्फ Yes. माइक्रोमोलेक्यूल और एसोसिएटेड कोलॉइड्स के ऊपर ही है ना, मतलब बाकी भी मैक्रोमोलेक्यूल्स पे नहीं एग्रीगेट होते होगा? हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में भी पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं. इफ यू ऐड, इफ इट इज अ लायोफोबिक सॉल्व एंड यू Yes. ऐड इलेक्ट्रोलाइट, तो पार्टिकल्स उसके साथ में भी ये होते हैं ना, एग्रीगेट होते हैं. यस, मैक्रोमोलेक्यूल में भी होगा क्या? वो ट्रू हाँ, सॉल्यूशन जैसा है ना मैक्रोमोलिक्यूल में तो? भी होते हैं. सो हम लोग इन जनरल बोलेंगे कलॉइड्स में कलॉइडल डिस्पर्शन में पार्टिकल्स एग्रीगेट टुगेदर ओके. compared to true solution. So number of particles in colloids are lesser than that of true solution. So I is lesser than that of true solution. So colligative colloidal properties का जो value रहेगा वो less होगा than that of true solution. Is this clear all of you? मैं लिखती हूँ यहाँ पे. In colloidal dispersion, number of particles aggregate together. Therefore, number of particles are less in colloidal dispersion than that of true solution. So I यानी क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर होता है. I of colloidal dispersion is less ना than that of I of true solution. So colligative property of colloidal dispersion is less than This is clear all of you? Write it down fast. Ma'am, can you explain this again? Yes? Can you explain this again? What you have not understood, just tell me. So I'll explain that point to you. Ma'am, this I wala part, I colloidal dispersion. What is I? All of tell me. What is I? What is the relation of I and colligative property? बताओ.
ये नहीं मालूम है आई का और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ शालू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैम। हाँ, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं समझा? अगर तुम्हारा आई मैम कम मैं नहीं है, थी, मानसी थी। मानसी मानसी को तो मालूम ही नहीं रहेगा ना, मानसी ने लेक्चर ही नहीं अटेंड किए हैं। सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव किया है मानसी अटेंड? यस मैम किया है। You know what is Venn of factor? यस मैम। What is Venn of factor? Tell me. मैम एग्जैक्टली नहीं पता, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। See, रेशियो डेल्टा ऑफ पी, नॉर्मल एंड ये एबनॉर्मल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मालूम है? ये कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मानसी? This is which colligative property? मैम डोंट नो। See, then how you will understand? See, all chapters are related with each other. If you don't know that chapter, how you will understand this concept? These all are colligative property. This is relative lowering. This is elevation in boiling point. This is depression in freezing point. This is osmotic pressure. This is equal to Ix2. This is I kbm. अभी ये भी तुम्हें मालूम नहीं रहेगा ये m क्या है, kf क्या है, kb क्या है. So how I will explain you? Now I cannot teach you solution and colligative wala chapter here. So here you can see they are हाँ, directly I'll see. proportional. So if I is less, then colligative property is going to be less. Yes, all of you. Is this clear? Yes. जिसको Yes, भी ma'am. solution ma'am. chapter आता है उसको ये point एकदम easily clear हुआ रहेगा. चलो. Now these were the general properties of colloids. Now we will study optical property. First हम लोग ने जनरल प्रॉपर्टी स्टडी किया. अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे. तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है, ऑप्टिकल यानी लाइट. नाउ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इज एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट. ये सब लोग ने किया रहेगा स्कूल में. यस. सो मैं इसका तुम लोग को एक्सपेरिमेंट बताती हूँ एंड हम लोग फिर उसको देखते हैं